फैक्ट शैल बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट का क्या मतलब है, या एफिडेविट का यहां पे पर्पस क्या है? बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग which actually defeats the purpose of an affidavit, which is known as verification. Now for verification, if you see order 6 rule 15, ऑर्डर 6 रूल 15, तो सबसे पहले हमें अगर आप देखोगे सब रूल 1 बताता है वेरिफिकेशन करता कौन है। वेरिफिकेशन इज डन आइदर बाय द पार्टी और पर्सन acquainted with the facts of the case. There are two people who can verify a particular plaint. क्योंकि जब भी आप कोई प्लीडिंग देखेंगे उसमें देर आर डिफरेंट पैराग्राफ्स विच आर नंबर्ड, पैराग्राफ 1A B C D या 1 2 3 4 या ABCD एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू योर ड्राफ्टिंग नंबरिंग सिस्टम हर एक प्लीडिंग को अलग अलग पैराग्राफ्स में नंबर दिया जाता है, पैराग्राफ A B C या 1 2 3। जब भी हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की, द वेरिफिकेशन इज डन ऑफ नंबर्ड पैराग्राफ्स, नंबर्ड पैराग्राफ्स की वेरिफिकेशन हो रही है। और वेरिफिकेशन भी दो तरीके की है। वेरिफिकेशन दो तरीके की क्या है, एक ओन नॉलेज, मतलब आप वेरीफाई कर रहे हो बाय योर सिग्नेचर दैट व्हाट इज रिटन इज ट्रू टू योर ओन नॉलेज। What is written is true to your own knowledge. तो मान लीजिए अगर मैं प्लेंटिफ हूं तो क्या मुझे कॉज ऑफ एक्शन के बारे में पता होगा कि भाई किस वजह से ये डिस्प्यूट आया, मैं कोर्ट क्यों आ रहा हूं, ये तो मुझे पता होना चाहिए ना। सो ओन नॉलेज का मतलब हुआ वेरिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ मैटर इन इशू। भाई हाउ डिड आई गेट दिस कॉज ऑफ एक्शन इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द मैटर इन इशू इन द पर्टिकुलर सूट। Of course, I will be knowing that. For example, अगर मैं बोलूं कि मैं लैंडलॉर्ड हूं और आप टेनेंट हैं और मुझे आपको एविक्ट करना है, so the matter in issue which is basically let us say the rent agreement, the matter in issue which is the tenancy, मुझे उसके बारे में पता होगा कि नहीं होगा, yes or no? Of course पता होगा। अभी दूसरी वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड and believed to be true, इसका क्या मतलब है? This refers to the technical pleadings. Technical pleadings. This refers to the technical pleadings. अभी technical pleadings का क्या मतलब है? Let me explain. For example, I am, let us say, not an advocate. I am simply a plaintiff. I do not know anything about the law, or I might know something about the law, I don't care. As a matter of fact, I go to an advocate, I go to her and say that ma'am, please file this plaint because I do not know how to do it. You have to file it, please file it. I have this cause of action, this is the problem, this is the dispute, I am the landlord, he is the tenant, I want to evict him, etc., etc. There is so much arrears of rent, this, that, everything. Now I go to her and say that please file my suit. So she drafts a plaint. Those paragraphs, that part of my pleading, those paragraphs wherein I know this is the cause of action, I know this is the matter in issue, I know that I am the landlord, what is there in my own knowledge, I will verify that this is in my own knowledge and I believe it to be true. This is in my own knowledge, I know it, this is the fact, this is my knowledge. On the other hand, now she is the advocate, I am the plaintiff. Do I know about whether it is a suit of purely a civil nature? Yes or no? I don't know. मुझे नहीं पता. Do I know that this court has jurisdiction? I don't know. Does anybody and everybody know what is the pecuniary jurisdiction of a particular court? कितने value का matter किस court में जा सकता है? I don't know anything.
These are known as technical pleadings. What law has to be applied? What particular law has to be applied? What technical pleadings have to be raised? She is aware of that and you believe it to be true. ठीक है? सब rule 3 देखिए. Verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed. So I will sign it with the date and place. This is written in sub rule 3. और अगर आप देखोगे तो प्लेंट के हर पेज पे सिग्नेचर भी करवाए जाते हैं. ये पता है आपको? प्लेंट के हर पेज पे सिग्नेचर कराए जाते हैं. कौन करता है? पार्टी. मैंने कुछ एडवोकेट्स को भी सिग्नेचर साथ में करते हुए देखा है. हम भी स्टैंप लगाएंगे और सिग्नेचर करेंगे. दैट इज नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस. दैट सॉरी हाँ, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस. वो आपके लास्ट में वकालतनामा में आ जाए वो ठीक. दैट इज नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस. वेरिफिकेशन इज डन ओनली बाय द पार्टी. ठीक है. सब रूल 4 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल ऑल्सो फर्निश एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग्स. फिर आ गया एफिडेविट. अभी एफिडेविट समझ के चुकी तो फिर आ गया. यहां क्यों लिखा है एफिडेविट? भाई हमने सिग्नेचर कर दिया. वी हैव डन द सिग्नेचर्स दैट आइदर these numbered paragraphs 1 2 3 4 XYZ, I know it is in my knowledge and I believe it to be true. और दूसरी चीज मैंने ये भी वेरीफाई कर दिया that whatever technical pleadings my pleader is raising, I do not know about it, but it is information received and believed to be true. मैंने वेरीफाई कर दिया ना. ये एफिडेविट की क्या जरूरत है? दिस इज अगेन बाय एन अमेंडमेंट. यू सी 2002 में एनफोर्स हुआ है. 1999 अमेंडमेंट. यस और नो? सब रूल 4. I don't understand what is the purpose here. जब मैंने वेरीफाई कर दिया, भाई कोर्ट में जा रहे हो, वेरीफाई तो करके जाओगे कि भाई जो सारी चीजें लिखी हैं वो सही है कि नहीं. यस और नो? यू विल नॉट सिंपली जस्ट वेक अप एंड गो टू द कोर्ट कि भाई आप कुछ भी बोलना शुरू कर दो कोर्ट में. जब वेरीफाई कर रहे हो तो एफिडेविट की क्या जरूरत है? यू टेल मी. सपोर्ट करने के लिए. दैट इज नॉट ऑन ओथ. दैट इज नॉट ऑन ओथ. दैट इज नॉट ऑन ओथ. दैट इज व्हाई देयर वाज दिस नीड ऑफ एफिडेविट.